हेलो हेलो हेलो। सभी को नमस्ते, सत श्री अकाल, सभी को सलाम वालेकुम। एंड आई एम Juvitesh Saharan and I welcome you all and this first video of mine and the first course that I'm starting, and this will be a complete course for CDS 2021 and maybe used for other competitive exams as well. I'll try to make this series as comprehensive as possible. ज़्यादा से ज़्यादा मैं कोशिश करूँगा कि सारे एस्पेक्ट्स को कवर करूँ फ्रॉम द प्रिपरेशन, right from starting from the written exam to your interview, and especially the SSB preparation, maybe some parts of it. And so, little about myself, because you will be studying from me, so you need to know me a little. So I've done my class 12th with physics, chemistry, maths with CBSE board, and I've had graduation from Hindu College, that is in Delhi University. I've done my graduation in history honors, and I have also completed my postgrad in 2019. I've done my postgrad from Department of History, Delhi University, and I've cleared NDA, CDS. I gave CAT 19, got 3 IM calls. So as you can see, I have like fair knowledge of physics, chemistry, maths, and a good knowledge of history and other subjects of humanities, especially geography and polity, and fair bit of knowledge of economy as well, because they are all interconnected and interrelated subjects. Okay, so that is about me. So this course, I'll try to keep this course 100% free, and I'll try to be bilingual. I'll try to teach you guys in 70% English and 30% हिंदी. कोशिश रहेगी कि हिंदी में पढ़ाया जाए, परंतु हिंदी में पढ़ाना आप जानते हैं थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है, बिकॉज हिंदी बोलना अलग चीज़, पढ़ाना एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है. सो बट स्टिल आई विल गिव माई बेस्ट. ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराने की कोशिश रहेगी, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज के थ्रू हो फिर. ओके, सो let's move forward. Let's talk about the roadmap. Let's talk about the entire course that I'm planning to bring to you guys. Let's talk about how we will be proceeding throughout this whole journey. So, as you all know, your exam for CDS is on 14th of November, and so you have give or take 6.5 months. So, I'm planning to conclude the whole course by October end, and I'll try to complete my syllabus. Have a few runs at revision in the last few weeks, and take some tests in between, and some complete full length tests at the end as well. So as you can see, your registration will start as per the notifications as of now. Registrations will start on 4th August, and the exam will be held on 14th November 2021. Okay, so this is what I'm like planning to schedule as of right now. So I'll try to finish most of the things from 6 months from this day, and two subjects will be run simultaneously. I'll try to ensure that uh, I won't be just hammering down on one subject, so that it won't be monotonous for you guys. We all want that, enjoyment and that joy in studying. So I'll try to ensure that that sustains. तो कोशिश रहेगी दो सब्जेक्ट साथ में हो. मई जून में सबसे पहले हम पॉलिटी और ज्योग्राफी को कवर करने की कोशिश करेंगे. वील कवर दीज सब्जेक्ट्स थ्रू NCERT एंड GC Leong फॉर ज्योग्राफी, वेर एवर रिक्वायर्ड GC Leong. मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स विल बी कवर्ड थ्रू NCERT. और पॉलिटी के लिए NCERTs प्लस साथ में थोड़ा बहुत जो टॉपिक्स लक्ष्मीकांत से करने की ज़रूरत रहेगी उसको लक्ष्मीकांत से करेंगे. पॉलिटी में NCERT की ज़रूरत थोड़ी सी कम रहेगी. लक्ष्मीकांत से और करंट अफेयर्स से लेके हम टॉपिक्स को पूरा करने की कोशिश करेंगे. उसके आगे बढ़ते हुए हम फिर मिड अगस्त में हम हिस्ट्री और इकोनॉमी करेंगे. हिस्ट्री के लिए भी ज़्यादा से ज़्यादा फोकस NCERT पे रहेगा, और साथ में कुछ बुक्स, स्टैंडर्ड बुक्स हैं अपनी स्पेक्ट्रम जैसी, उनसे, या फिर नितिन सिंघानिया जैसी किताबें हैं जो कि आपके काफ़ी काम की नहीं हैं, परंतु उसमें से आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड जो छोटे मोटे एस्पेक्ट्स जिन पे कुछ क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं, उसके हिसाब से मैं आपको अपने आप करा दूंगा. इकोनॉमी के लिए अगेन आई ब्रिंग माई ओन सोर्सेज फॉर इकोनॉमी. NCERTs इतनी ज़्यादा एक हद से ज़्यादा आगे काम के नहीं है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस आते हैं थ्योरी के, एंड विल ट्राई टू लिमिट NCERT एज पर द एग्ज़ाम पैटर्न इटसेल्फ. उसके आगे ये सारा हम काम मिड अगस्त तक
हिस्ट्री इकोनॉमी, मेजर जो 4 सब्जेक्ट्स हैं आपके, ज्योग्राफी पॉलिटी हिस्ट्री इकोनॉमी, आपके वो कवर हो जाएंगे मिड अगस्त तक। उसके बाद कुछ बीच में टेस्ट लेंगे आपके, और उसके बाद फिर जो साइंस का है पोर्शन, मिड अगस्त से सितंबर एंड, अगस्त आधा और सितंबर 1.5 महीना, लगभग 45 से 50 दिन आपके साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी पे। स्पेशली ये थोड़ा फास्ट रहेगा तो रिवीजन ज़्यादा होगा, परंतु मैं ज़्यादा से बेहतर कराने की कोशिश करूँगा। अक्टूबर में इसके बाद हम इंग्लिश करेंगे, एंड आई विल ट्राई टू ब्रिंग पीपल, फ्यू ऑफ माई फ्रेंड्स एंड एक्सपर्ट्स who will be able to teach you far better than me. I guarantee you 50% that this will happen. I won't guarantee you 100% this will be happening. But मेरी कोशिश रहेगी कि आपको बेहतर से बेहतर कराया जा सके। उसके अलावा हम अक्टूबर के अंदर मेजर स्कीम्स करेंगे, और करंट अफेयर्स जो मुझे एग्जाम से रिलेवेंट लगेंगे वो करेंगे। I'll ask just one thing from you guys. I'll ask you guys to have 100% faith in me. I'll cover things as per my own speed. Okay, I'll cover everything. You'll just have to trust me, have faith in me, be part of this community, and just enjoy the process. That is it. Have complete faith in me. I might skip a few topics here and there, but I will skip those topics, knowing that I'll be covering those topics later. जानबूझ के मैं कुछ टॉपिक्स कराऊँ छोड़ूंगा, ताकि वो बाद में जिनको जब पूरा समझा जा सके उसको उस समय कराया जाए। तो आपको बिल्कुल भी चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? हैव जस्ट कंप्लीट फेथ इन मी। ओके, so my plan will be to have 1 or 2 classes every day, and a weekly plan will be to have 10 to 12 classes every week, uh, maybe give or take 10%, so 1 or 2 classes here and there. I'll take some tests, some topical tests and some full length syllabus tests at the end, so that will be part of the course itself. So yeah, and for doubt solving you can contact me on Instagram at Jivitesh Saharan, एंड यू कैन ड्रॉप मी मेल। मैं मेरे मेल्स बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली चेक करता हूँ, तो दिन में शायद इंस्टाग्राम से ज़्यादा मेल ही चेक करता हूँ मैं। तो यू कैन ड्रॉप मी मेल एट INeedMoreUC1@gmail.com, सो आई विल बी एबल टू आंसर टू ऑल योर क्वेरीज एंड डाउट्स। अगर आपको वैसे भी स्टडी से रिलेटेड डाउट्स है तो आप वो पूछ सकते हैं, और आपको अगर वैसे भी लाइफ में कोई भी इश्यूज़ हैं आप डिस्कस करना चाहते हैं, यू आर ट्रबल्ड in any sort of way, so you can directly reach out to me. I'll be more than happy to help you guys out. And yeah, I actually love teaching, so I'm doing this out of my own passion. And yeah, so without any further ado, let's start with our class. First, today's class will be regarding Indian polity. We'll have very brief discussion, and we'll leave that for the class first. So let's talk about a little historical background of the constitution, because when you talk about Indian polity, it's not politics, it's first polity. So you don't have to go in, okay, this party is doing this, this, this. Just don't go in that side of things, because that is completely counterproductive, and I have zero interest as of right now pursuing my own goals and doing this course with you guys. I have zero interest in politics as of right now. So we'll be discussing about the historical background of the constitution. So let's start. So आप सब जानते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी, हमारा देश जो सोने की चिड़िया से इन्होंने ये लकड़ की चिड़िया भी नहीं छोड़ी। वो 1600 AD के अंदर हमारे देश में आए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी केम टू इंडिया 1600 AD के अंदर, एंड दे केम विद अ चार्टर बाय क्वीन एलिजाबेथ, क्योंकि मर्केंटलिज्म उस समय बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट था यूरोप में। मर्केंटलिज्म यदि आपको समझना है तो आप कमेंट्स में मुझे बता दीजिए, आगे आई ट्राई टू मेक स्पेसिफिक वीडियोज़ ऑन स्पेसिफिक टॉपिक्स। तो मर्केंटलिज्म मोटा मोटी ये होता है कि सरकार प्राइवेट कंपनीज़ को बैक करती है, ताकि वो सरकार मतलब उनको नेवल हेल्प प्रोवाइड करेगी, मिलिट्री हेल्प प्रोवाइड करेगी, फाइनेंसेस उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड करेगी। एक तरीके से वो सरकारी बैक्ड कंपनियां, मतलब पूरे नेशन को रिप्रेजेंट करती हुई कंपनियां होती हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी उस समय इंडिया आई चार्टर लेके, मतलब ट्रेड का परमिट लेके एक तरीके से क्वीन एलिजाबेथ वन से, एंड ट्रेडेड छोटे मोटे उसने अपने फैक्ट्रीज एज इन वेयर हाउस फैक्ट्रीज बोलते हैं, लेकिन उनको उन्होंने लगाए अपने ईस्टर्न कोस्ट पे, एंड फ्यू ऑन द वेस्टर्न कोस्ट नियर द बंगाल रीजन।
सो उसके बाद जो मेजर इवेंट हमारे को इंडियन पॉलिटी में देखना है वो है बैटल ऑफ प्लासी। जैसा कि आप सब जानते हैं, लॉर्ड क्लाइव जो कि पहले क्लर्क होते थे सिर्फ। भाई देखो, जीवन में किसी से सीखना है तो लॉर्ड क्लाइव से एक चीज़ ज़रूर सीखो, ठीक है। क्लर्क था इंसान, क्लर्क से उठ के उसने पहले तो कर्नाटिक वॉर्स के अंदर अपना हीरोइज्म दिखाया, ठीक है। कर्नाटिक वॉर्स बहुत बेहतरीन तरीके से लड़े उसने। उसके बाद जब कर्नाटिक वॉर्स में उसने सफलता प्राप्त करी तो उसको प्लासी में युद्ध लड़ने के लिए भेजा। उसने प्लासी के अंदर मतलब मुश्किल से 30 लोग मरे होंगे प्लासी की लड़ाई में, और पूरा बंगाल कब्जे पे कर लिया है। नवाब को हरा दिया, नवाब की सेना के अंदर फूट गिरा दी, नवाब का सेनापति अपनी साइड कर लिया। कुछ मतलब कहाँ क्लर्क एक कंपनी में छोटा सा, और कहाँ वो पूरे ईस्ट इंडिया कंपनी का इंडिया में मालिक, ठीक है। सीखना हो तो भाई ऐसे लोगों ऐसे, इतना बड़ा हो गया था इसका नाम अपने लॉर्ड क्लाइव का। अंग्रेज जो थे, जो पार्लियामेंट में बैठते थे अंग्रेजों की, वो लोग इससे जलने लगे थे। वो उन्होंने इसके ऊपर केस वेस चलाए कि भाई ये इतना अमीर कैसे हो रहा है। तो शुरुआत कैसे भी हो, इंसान का टारगेट्स, इंसान का डेडिकेशन, इंसान का जो जज्बा है वो बड़ा होना चाहिए, वो कुछ ना कुछ हमेशा करते वाला होना चाहिए, ठीक है। तो दिस इज समथिंग दैट वी कैन लर्न इवन फ्रॉम द पर्सन लाइक क्लाइव, जो कि हमारे इंडिया के इतिहास में तो मतलब इससे बुरा शायद ही कौन होगा भाई। इन्होंने तो इसने अपना देश को लूटने की शुरुआत क्लाइव ने करी थी। खैर, उसके बाद 1964 के अंदर बक्सर की लड़ाई होती है। बक्सर की लड़ाई पहली रियल लड़ाई होती है जिसके अंदर अंग्रेजी सेना, जैसा कि मैंने बताया प्लासी के अंदर तो अंदर फूट गिर जाती है। बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजी सेना जो भाग के गया होता है नवाब, उसको, नाम्स आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, सी लिसन आई हैव रिटन हियर एज वेल, नेम्स एंड डेट्स, ऑल दीज थिंग्स आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस, जस्ट अंडरस्टैंड द बेसिक आइडिया, अंडरस्टैंड द इवेंट्स, अंडरस्टैंड द क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी समझिए मान्यवर। तो बेसिक चीज़ें समझ लो आप लोग कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। नाम जितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, प्लासी और बक्सर तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, बट ईयर वीयर आपको आइडिया होना चाहिए, पहले प्लासी हुआ था फिर बक्सर हुआ था। खैर, तो जो मुगल बादशाह था वो, प्रॉब्ली इट वाज शाह आलम, जो अवध का राजा था वो, और जो बंगाल का नवाब था वो, तीनों की कंबाइंड आर्मी उनको हरा दिया बैटल ऑफ बक्सर में। जब उनको हराया तो बंगाल के अंदर दीवानी राइट्स का मतलब होता है रिवेन्यू कलेक्शन, रेवेन्यू कलेक्शन के राइट्स मिल गए। रेवेन्यू का मतलब भाई जो टैक्स आएगा वो सरकार लेगी। कुछ रीजन्स के, बंगाल के कुछ रीजन से, बिहार के कुछ रीजन, उस टाइम का जो बंगाल का प्रोविंस था उसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा, और मतलब आज के टाइम के हिसाब से तो झारखंड भी, तो और असम का भी कुछ पार्ट, तो ये सारा उस टाइम का बंगाल का प्रोविंस था। तो इन अलग अलग एरियाज में कुछ कुछ पॉकेट्स ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गए कि यहाँ से जो टैक्स आएगा वो आपका। तो फ्री का इनको कुछ संभालना नहीं, कुछ नहीं करना, जो टैक्स आएगा वो इनका। प्लस साथ में सिविल जस्टिस, दो तरह की कोर्ट्स होती थी, जैसे आज के टाइम भी दो कोर्ट्स होती हैं, क्रिमिनल कोर्ट्स और सिविल कोर्ट्स। तो उस टाइम भी दो कोर्ट्स होती थी। सिविल जस्टिस की कोर्ट्स अलग होती थी, फौजदारी अदालतें अलग होती थी क्रिमिनल ऑफेंसेस के लिए। तो जो सिविल जस्टिस के मैटर थे, जो सिविल क्राइम्स होते थे, उनके मैटर कुछ एरियाज के अंदर वो भी ईस्ट इंडिया कंपनी को मतलब जुडिशियल पावर्स मिल गई। खैर, तो दिस वॉज अ वेरी मेजर ब्रेक थ्रू फॉर द ईस्ट इंडिया कंपनी, एंड फ्रॉम देयर वी डायरेक्टली गो टू 15 अगस्त 1947। हमारा मेरा प्यारा भारत आज़ाद हो गया। और इसके बीच में जो इवेंट्स हुए दे आर इम्पोर्टेंट एंड विल कवर देम एज द टाइम कम्स। अभी जब हम पूरा कॉन्स्टिट्यूशन के डेवलपमेंट की बात करेंगे, कैसे कैसे डेवलप हुआ, तो हम उसके पूरे इवेंट्स की, उनकी सबकी चर्चा करेंगे। हिस्ट्री के अंदर हम दोबारा उन सारे इवेंट्स को दोबारा कवर करेंगे, एंड सो रेस्ट अश्योर्ड ये सब चीज़ें होंगी। बट अभी के लिए, जब मेरा प्यारा भारत आज़ाद हो गया, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी 1946 में। भारत के संविधान को बनाने के लिए, कानूनों का कानून, संविधान, उसको बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी, और वो कानूनों का कानून 26 जनवरी 1950 को भारत के अंदर लागू हो गया, और भारत एक रिपब्लिक बन गया। रिपब्लिक मतलब जहाँ पे जिस देश का हेड लोग इलेक्ट करते हैं। सो for this constituent assembly, there were some aims and objectives that were established, and the whole process, the whole draft that was made by Nehru, it is called aims and objectives resolution, कि हमारे क्या लक्ष्य रहेंगे, हम किस प्रकार का एक संविधान बनाएंगे, उसके सारे आइडियाज़ थे उसमें। और जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो नेहरू ने दिया था, वही आगे चलकर
डायरेक्टली नहीं बट एक फॉर्म में प्रीएम्बल का रूप उसने लिया। तो ये सब आपके लिए जानना जरूरी है। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन आप जानिए और आगे बढ़ते हैं। सो अभी भाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना ली, हम बात करेंगे कौन कौन उसके पार्ट्स थे, कौन कौन किस किस डिपार्टमेंट्स को संभाल रहे थे, समय आएगा। तो उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर जो कानून बनाए, जिस तरह से भारत को बनाने का एक सपना देखा गया इस एम्स एंड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में, जिस प्रकार का एक एक आइडियल इमेज बनाई गई भारत की, वो इमेज कहां से आई, उस इमेज के पीछे रूट्स क्या थे। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो हमने बनाया, एक अलग देश जो हमने बनाया, उसके पीछे काफी रूट्स जो थे वो ब्रिटिश रूल के अंदर ही लाया कर रहे थे। इसके कुछ कारण है, आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं कि क्या कारण है कि हमने काफी उन चीजों को कंटिन्यू रखा जो कहीं ना कहीं ब्रिटिश एम्पायर के खुद के रूल के अंदर हमारे को दिख रहे थे, और जो उन्होंने कुछ चीज़ें हमारे ऊपर लागू भी करी हुई थी। इवन काफ़ी सारे आज के लॉज भी रेदर 19th सेंचुरी तक के भी इतने पुराने, मतलब 150-200 साल पुराने भी लॉज आज भी चल रहे हैं देश में। तो उन लॉज को कंटिन्यू करने का क्या कारण था, आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। बट मूविंग ऑन, so these key features and this the basic tenets of Indian constitution and polity had its rule in the British uh, era itself, and the key features are federalism, and I hope you all must be aware about what is federalism. तो जबकि भारत एक फेडरल स्टेट है बट यूनियन टिल्ट के साथ है, ऐसा आपने सुना होगा। ब्रिटेन जबकि खुद एक यूनियन, काफ़ी ज़्यादा हैवीली यूनियन टिल्ट के साथ है। अमेरिका जैसा आप जानते होंगे, इट्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो वहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स हैं, स्टेट्स ने मिलकर अमेरिका को बनाया है, वो काफ़ी फेडरल कंट्री है, बहुत फेडरलिज्म की तरफ हैवीली टिल्टेड है। तो बट इंडिया के अंदर फेडरलिज्म का कंसेप्ट क्यों रखा गया, क्योंकि प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स में डिवाइडेड था इंडिया उस समय, और क्योंकि प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स में आप अंतर समझते होंगे। कुछ एरियाज जो डायरेक्टली ब्रिटिशर्स गवर्न कर रहे थे वो प्रोविंसेस थे, और जो इंडियन प्रिंसेस जिनको गवर्न कर रहे थे वो प्रिंसली स्टेट्स थे। तो क्योंकि पूरा इंडिया उस समय ऐसे अंग्रेज डायरेक्टली गवर्न नहीं कर रहे थे, तो इन प्रिंसली स्टेट्स के पास ज़्यादातर, प्रोविंसेस के पास भी ऑप्शन था बट प्रिंसली स्टेट्स अधिकतर इंडिया बनते समय इंडिया में ना आती यदि उनको लगता कि हमारी एग्जिस्टेंस पे बहुत बड़ा खतरा है। तो इसलिए हमारे को फेडरल स्ट्रक्चर की तरफ जाना ज़रूरी था, इस भारत को जो आज हम भारत जानते हैं इसको बनाए रखने के लिए। तो इसके आगे बढ़ते हैं। जो की फीचर है दूसरा, वो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जैसा कि मैंने बताया, ये भी ब्रिटिश रूल से एज इट इज टेकन था, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। वी वर अवेयर अबाउट इट, how it functions and its intricacies. So we continued with the parliamentary form of government, and it is a key feature of the Indian polity today. Another key feature is the separation of power. And you know about the separation of power between executive, judiciary, and legislative. The other key feature is fundamental rights. So we enjoy certain fundamental rights, and those fundamental rights, the concept has been taken from United States of America. And then we have another key feature, that is of the secularism. Indian secularism is quite distinct from the secularism as the West knows. काफ़ी बार इस प्रकार की चर्चाएं आपने सुनी होगी कि फ्रांस का, यूके का, ये यूएस का जो सेकुलरिज्म का कंसेप्ट है वो इंडिया से अलग कैसे है। हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे, हम सब पॉइंट्स की चर्चा करेंगे इस समय आने पे। एंड इट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग, आप जान के हैरान होंगे कि किस प्रकार से जो हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन था, संविधान था, वो किस प्रकार से डेवलप हुआ, किस प्रकार से इवोल्व हुआ। ओके, सो दिस इज व्हाट इट इज फॉर टुडे। दिस इज काइंड ऑफ टेस्ट डेवलपिंग क्लास। आज आप लोगों को मैं ये बताना चाह रहा था कि पॉलिटी के अंदर नियर फ्यूचर में क्या पढ़ेंगे हम लोग, और कुछ ब्रीफ आइडिया दे रहा था। खैर, एज it is very important for the paper itself, for any paper in general, to have a good vocabulary to crack it, and not just for the written exam. आगे भी अगर आप इंटरव्यू वगैरह के लिए जाएंगे तो you need to have good vocabulary. So I recommend you all to get this book, Word Power Made It Easy. This is not a be all and all solution. मतलब आप इससे सब कुछ नहीं सीख जाएंगे, सारी vocabulary नहीं आ जाएगी, but this is a very good start and I recommend that you should get it. Anyways, मैं इसके 1, 2, 4, 5 कभी कभी 5 वर्ड्स भी, वरना एटलीस्ट एक वर्ड तो मैं आपको हर वीडियो के अंदर जरूर दूंगा, ताकि आप धीरे धीरे अपनी वोकैबुलरी को ग्रो कर सकें। तो आज का वर्ड है मिसएंथ्रोप। मिसएंथ्रोप, इस जैसे कि इस बुक से आप देखेंगे कि रूट वर्ड्स के थ्रू आपको सिखाया जाएगा। तो एंथ्रोप यहाँ पे एक रूट वर्ड है। एंथ्रोप का मतलब होता है
प्रोबली इट्स ग्रीक और लैटिन रूट, बट एंथ्रोप का मतलब होता है मैन, मैन, या फिर आप इसको बोल सकते हैं इंसान। ठीक है, इंसान, एंथ्रोप। ओके, आपने सुना भी होगा एंथ्रोपोजेनिक रीजंस, मतलब मैन मेड क्राइसिस किसी चीज़ का होता है, क्लाइमेट चेंज वगैरह से रिलेटेड। तो खैर, मिस एंथ्रोप, मिस को आप समझ सकते हैं मिस कर देना। ठीक है, एंथ्रोप इंसान। तो किसी ने लोगों से मिलना मिस कर दिया हो तो वो मिस एंथ्रोप हो जाएगा। क्यों? मिसएंथ्रोप का अर्थ हुआ यदि वो लोगों से मिला ही नहीं सारी उम्र, उसने मिस कर दिया, वो अकेला ही पड़ा रहता था, तो वो लोगों पे भरोसा नहीं कर पाएगा, वो सोचेगा लोग बुरे होते हैं। ठीक है, देन ही विल स्टार्ट हेटिंग पीपल। सो समबडी हु मिस एंथ्रोप्स, मिस एंथ्रोप मीन पीपल, इंसान जो लोगों से मिलना मिस कर देगा, वो लोगों में अच्छा देखना भूल जाएगा। सो मिसएंथ्रोप इज समबडी हु हेट्स पीपल इन जनरल एंड हु थिंक्स दैट पीपल आर नो गुड, लोग अच्छे नहीं होते, लोग भले नहीं होते। सो दिस इज द वर्ड ऑफ द डे। आई होप you'll remember it. And this is what it is for today. Like the video if you like it, dislike the video if you disliked it, and comment. Either ways, you have to tell me why you liked it, why you disliked it, and your comments helps a lot. I want you all to comment. चाहे फालतू कर दो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, just comment and see you all in the next one. Thank you guys, bye bye.